Hello, my dear students. I am Dr. Veena Dhari, Associate Professor from Rabindranath Tagore University. Today we are going to discuss about the memory organization. That is your fourth unit of your syllabus. So these are the outcomes. After this lecture, students, you will be able to define the terms. What is main memory, secondary memory, and cache memory, different terminologies about the memory, and able to design a small RAM and ROM chips, and able to describe the memory mapping concept, how it will be mapped. This concept also it will be clear to you after this lecture. See, memory is an essential component in your computer system. If extra memory is there, then it will work more efficiently. इसलिए तो आपकी लैपटॉप्स इसमें तो सिस्टम की मेमोरी पहले मेमोरी बढ़ाना है, एक्सटर्नल स्लॉट अलॉट करना है, मेमोरी चिप एक और ऐड करना है. So this is for to improve the efficiency of the system. The total memory capacity can be looked as hierarchy of the components. There is a different types of memories are available. So in these different types of available, it will be divided. Hierarchy is available. There is a hierarchy. What is the first priority to which memory is assigned? किस memory को कौन सा priority दिया गया, इसी को कहते हैं अपन hierarchy. Okay. So देखिएगा, normally memory will be divided into main memory, you know already, secondary memory, cache memory, associative memory, and IO processors. So these are the different types of memories. Main memory occupies the central position and can communicate directly with the CPU. Okay, so central processing के यूनिट के साथ मेन मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है, बट इट कैनॉट कम्युनिकेट विद द ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना. ऑक्सिलरी मेमोरी के साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है. थ्रू आईओ प्रोसेसर के थ्रू ओनली इट कैन communicate to auxiliary memory. What is auxiliary memory? Auxiliary memory means secondary memory, that is magnetic tapes, disks, whatever. So these are the auxiliary, मतलब secondary memory है. इसके साथ communication करने के लिए IO processor की जरूरत है. Cache is used to increase the speed of processing, है ना. So देखिएगा, कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाते हैं क्योंकि डेटा को मेन मेमोरी से ले आने में इट विल टेक द टाइम, है ना. इन बिटवीन द कैश मेमोरी स्मॉल मेमोरी इज अवेलेबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम. कैसे इम्प्रूव करेंगे? ये मेन मेमोरी पे स्टोर करने वाला डेटा, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को कैश पे स्टोर करके इसको ले आने में इट विल टाइम को डिक्रीज करेंगे. सो इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इट आल्सो इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द सीपीयू, है ना. Sir, IO processor, already I told you, it will manages the data transfer between auxiliary, secondary memory and main memory, है ना. main memory कभी भी communicate करना है तो IO processor के through communicate कर सकते हैं. And so cache manages between main memory and CPU, है ना. it will improve the speed. And CPU has a direct access to main and cache, है ना. CPU को main memory के साथ cache के साथ direct access है, but there is no direct communication with auxiliary memory, है ना. So सीट में already told cache memory आपको speed को improve करने के लिए use होता है. The speed of the cache memory is 7 times faster than the main memory. So इसीलिए अपना memory का मतलब CPU का system का efficiency cache use करने से बढ़ जाते हैं. So आजकल की लैपटॉप्स में, पहले की लैपटॉप्स में तो कंप्यूटर सिस्टम्स में कैश मेमोरी अप टू 64 KB इससे कम अवेलेबल होता था. अब आजकल तो लैपटॉप्स में 10th जनरेशन कंप्यूटर्स में 8 GB तक कैश, 8 MB तक कैश मेमोरी है अवेलेबल है. सो देखिएगा कितना फर्क, मतलब वेरी 64 KB तो 8 MB तक, है ना. इतना कैश बढ़ गया, इसीलिए तो आजकल के सिस्टम्स वीडियो गेमिंग के साथ इतना फास्ट स्पीड इंप्रूवमेंट हो गया. ओके. सो देखिएगा, वो थियरी में एक्सप्लेन कर चुकी थी. दीज आर द पॉइंट्स डायग्राम. देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क्स.
So these are communicated with the IO processor. IO processor के through main memory से communication है. There is no communication with CPU. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है. कोई भी डेटा यहाँ से आईओ प्रोसेसर से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वहां से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, सो इसीलिए कभी भी अपन डेटा को सेकेंडरी डिवाइसेस से उठा रहे, मतलब डेटा ट्रांसफर कुछ कर रहे, तो इट विल टेक द टाइम, है ना, डेटा स्टोरेज पे यहाँ से पास हो जाएगा. ओके, एंड सीपीयू के साथ, मेन मेमोरी के साथ, कैश मेमोरी के साथ भी है, एंड सीपीयू के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ भी कम्युनिकेशन, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है. एंड सीपीयू को भी मेन मेमोरी के साथ भी है एंड इसके साथ भी है. ओनली मेन मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करना है तो वी नीड आईओ प्रोसेसर, इसका जरूरत यहाँ पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल डायग्राम ऑफ द मेमोरी सिस्टम हायरार्की का. सो यहाँ पर देखिएगा, सो हायरार्की मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है, आप जानते होगा. So already I explained in previous lectures some registers I explained. So accumulate data register. So register is the highest priority memories में. Highest priority register को होता है. And इसके बाद कैश मेमोरी स्पीड को इम्प्रूव करता है, इसीलिए सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर द रजिस्टर्स कैश मेमोरी विल बी हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. इसके बाद मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस में भी डिस्क को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा एंड मैग्नेटिक टेप को इसके बाद वाला प्रायोरिटी मिलेगा. देखिएगा, सो यहाँ पर इंक्रीजिंग द साइज है ना, यहाँ पर आप ऊपर से नीचे तक रजिस्टर सबसे छोटा होता है, इसके बाद कैश, इसके बाद मेन मेमोरी, डिस्काउंट टेप, इंक्रीजिंग द साइज है ना, नीचे आने तक आपका इंक्रीज साइज हो रहा है. बट यहाँ से यहाँ देखिएगा कितना कम मेमोरी, मतलब साइज कितना छोटा है उतना इंक्रीजिंग स्पीड है ना. द स्पीड इज इंक्रीजिंग व्हाइल साइज इज रिड्यूसिंग. ओके, इफ एंड speed is decreasing while size is increasing. Okay, vice versa. Okay, it is. And cost also है ना, using increasing speed cost also increasing. देखिएगा मैग्नेटिक टेप का सबसे, मतलब आप लोग देखिएगा टेराबाइट आजकल की हार्ड डिस्क अपन खरीदना सबसे कम रेट में आ जाएगा. वैसे कैश मेमोरी आप इफ यू वांट टू, मतलब कैश कितना ज्यादा होगा उस लैपटॉप भी इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना. इंक्रीजिंग द कॉस्ट पर बिट है ना, स्पीड इंक्रीज होगा, साइज कितना छोटा होगा उसकी कॉस्ट भी इतना बढ़ते जाएंगे. सो दिस इज द मेमोरी हायरार्की, सिस्टम हायरार्की. Okay, now we are dealing with different types of memories. I'm going to explain. That is, first is main memory. Okay, so main memory is consisting of random access memory and read only memory. ये अपन बहुत पहले से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे. इट इज रैम इज वोलेटाइल, रॉम इज परमानेंट, इट इज अ नॉन वोलेटाइल, ये सब कहानी आप जानते हैं. बट हाउ इट विल बी द चिप डिजाइन, हाउ कैन वी डिजाइन ए चिप, है ना, रैम चिप कैसे होगा, रॉम चिप कैसे होगा, ये क्या है, ये सब आप जानते नहीं है. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू learn this design of RAM chip and ROM chip. Okay, so इससे पहले इंट्रोडक्शन में रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज वोलेटाइल है ना, it destroyed when the power is goes off, है ना. RAM can be static and dynamic, है ना. static RAM flip flops यूज करके स्टोर करेंगे and dynamic RAM will be form of electric charges or capacitors, है ना, मतलब electric charges applied to capacitors यूज करके dynamic RAM, flip flops यूज करके static RAM को अपन देखते हैं, है ना. डी राम, SD RAM, DD RAM, आजकल की बहुत वेराइटीज है. यू जस्ट रिसर्च अबाउट इट, है ना, क्या डिफरेंसेस है आप लोग नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी क्वेश्चन, आपको आंसर करना है. ओके, नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी. दिस इज मतलब नॉन वोलेटाइल, दिस इज अ परमानेंट, है ना. सो इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, मैंने तब भी बता चुकी थी. in ROM control memory also residing. If micro programmed control unit is using in that particular computer, उसमें control memory होती है. control memory कहाँ reside होती है? It will be residing in ROM, है ना. and before आप लोग जानते नहीं होगा, bootstrap loader एक होता था. हम लोग 90s, even in 95s when I was studying MCA and all, है ना, सिस्टम एक बार चालू करेंगे तो चालू नहीं होता था.
है ना, बूटस्ट्रैप लोडर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी को रखना पड़ता था, तब बूट्स मतलब लोड हो जाती थी, फिर सिस्टम स्टार्ट हो जाती। आजकल तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम इज स्टार्टिंग नो, तो बूटस्ट्रैप लोडर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लगे, पहले इसको डालना पड़ता था बूट। सो ROM विल कंटेन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, है ना, इट विल नॉट बी अरेज्ड बाय एनीबॉडी, है ना, चेंज भी नहीं कर सकते, कोई राइट भी नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज परमानेंटली रिसाइडिंग। ओके, सो देखिएगा इसमें भी ROM में भी देयर आर सो मेनी वेराइटीज, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी and erasable programmable read only memory, electrically erasable programmable read only memory, these are the three। देखिएगा, so if you want to use, है ना, programmable means that is like micro programmed control unit, है ना, system का कोई programs if you want to use it, है ना, then it allows the लोड द रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स। बस एक बार प्रोग्राम्स आप लोड करने के बाद फिर आप उसमें लोड करने के बाद उसमें चिप को आपने लगाने के बाद सिस्टम के अंदर, देन इट वोंट बी चेंज, है ना, इट इज परमानेंटली, एक बार रीड हो गया मतलब लोड हो गया, इट वोंट बी चेंज। सो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार प्रोग्राम लिख सकते। बट yesterday I explained about the dynamic microprogramming, है ना, like this RAM, है ना, erasable programmable read only memory। So we can erase it, है ना, you can erase the data once if you load, if you want to change it, alter it, एक बार erase करके फिर से programs आप write कर सकते हैं इसमें, मतलब लिख सकते हैं। You can write your programs after erasing the data also. This is called erasable programmable read only memory। Okay, so यहाँ पर क्या है, each and every content will be erased and again you need to write new program, है ना, new data every time। if you are erasing you need to write a new, the whole thing will be erased। but here in this case, that is electrically erasable programmable read only memory, in this type of memory, if you want to erase only some portion of the data, है ना, some portion particularly in this location only I want to erase the data या program, है ना, erase करना चाहते हैं, so then we can go for the electrically erasable programmable read only memory। so is this ROM में read only memory में these are the three types of ROMs are available। PROM, है ना, programmable read only memory, EPROM, erasable programmable read only memory, and EEPROM, that is electrically erasable, only particular content if you want to delete, then we can go for the electrically erasable programmable read only memory। Okay, so each and every memory here we need to know the design of this particular memory, है ना, memories में main memory के बारे में देखेंगे अपन, नेक्स्ट एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में देखेंगे, फिर कैश मेमोरी देखेंगे, देन वर्चुअल मेमोरी आल्सो। सो इन दिस यूनिट we will learn all the memory types। okay, so now first in this today's class we are going to learn about RAM designing chip, है ना, designing of a RAM chip, है ना, read only memory random access memory chip को कैसे डिजाइन करेंगे। okay, देखिएगा यहाँ पर I have chosen only a little, मतलब 128x8 की कॉन्फ़िगरेशन को देखा मैंने, उसी को रैम चिप को कैसे डिजाइन करेंगे अपन, सबसे छोटा चिप कैसे डिजाइन होता है मैं बता रही हूँ आपको, है ना। सो रैम is the main memory, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोई भी काम होगा रैम के थ्रू ही होगा, आपको प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग की यूनिट की कोई भी आपका प्रोसेस होगा रैम के थ्रू ही होगा, डेटा सब रैम में ही स्टोर होता है। ओके, it has a bidirectional data bus that allows the transfer of data either from the memory to CPU during a read operation or from the CPU to memory during a write operation। okay, if you want to write any data into memory, that is called write operation। okay, कोई भी डेटा को अपन मेमोरी में लिखना चाहते हैं ना, if you want to write then that is called write operation, है ना, मेमोरी में, है ना, फ्रॉम द CPU से, प्रोसेसर से आप मेमोरी में डेटा लिख रहे हो, that is called write operation।
अदरवाइज मेमोरी से कोई भी डेटा ले रही हो, फेच कर रही हो, रीड कर रही हो, दैट इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन. ओके, so data either from memory to CPU, either from memory to CPU, that is called read, and from CPU to memory it is called write operation, है ना. So RAM is a bidirectional because we can read the data and we can write the data, है ना. Both operations we can perform in the random access memory. So इसीलिए random it is a bidirectional data bus, है ना. इसके पास bidirectional data bus है. So यहाँ पर मैंने already I told you the capacity of the memory is 128 words of and 8 bits, है ना. 1 byte per word, है ना. 128 into 8 है ना, इसकी लेंथ है 128 है पूरा लोकेशन से. ईच लोकेशन का लेंथ क्या है, 8 बिट्स है ना. 128 वर्ड्स मतलब ईच 1 बाइट पर वर्ड ले रहे हैं. यहाँ का वर्ड का लेंथ है 8 बिट्स ले रहे हैं. ओके, this requires 7-bit address and 8-bit bidirectional data bus. Why 7-bit address? यहाँ पर I told 128 है ना. 128 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा 2 to the power of 7 है ना. 2 to the power of 7, 2 to the power 5 is equal to 32. हमेशा remember this है ना. 2 to the power 5 is equal to 32. फिर 2 to the power of 6 is equal to 64. 2 to the power of 7 is equal to 128. इसीलिए आपको एड्रेस के लिए कितने बिट्स का जरूरत पड़ेगा, 7 बिट्स का जरूरत पड़ेगा, है ना. 8 बिट्स का बायडायरेक्शनल बस क्यों लिख रहे हैं मैंने, 8 बिट्स मतलब यहाँ पर अपन 128 इंटू एक एक वर्ड का 8 बिट्स ले रहे हैं. इसीलिए अपन को कोई भी डेटा बस लेना है तो 8 बिट लेना जरूरी है. ओके, so the read and write input specify the memory operation and the chip select, है ना. अपन को read operation करना है या write operation करना है, how can we know? So we need to know the chip selection. मतलब एक CS एक control input लेंगे, chip select 1, chip select 2. अगर chip select 1 enable हो गया तो read operation कर लीजिए, chip select 2 enable हो गया तो write operation perform करिएगा. So using this chip selection मतलब bits we can inputs we can enable the any operation whether it is a read or write. देखिए, so this is the chip selection 1 है ना. chip selection 1 and chip select 2 it will be हमेशा मतलब always it will be complement मतलब it is a ones complement state में होगा, ones complement नहीं, it is a complement. okay, it is a chip selection 1 CS1, chip select 2 it is a CS2, 2 bits for एक read operation के लिए, एक write operation के लिए, है ना. एक read and write के लिए, सिग्नल्स के लिए, है ना. ये दोनों में से कोई भी एनेबल होगा तो यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा या राइट ऑपरेशन इट विल परफॉर्म, है ना. इसका लेंथ मैंने बता चुकी थी 128 into 8, इसलिए 8 बिट बाइडायरेक्शनल डेटा बसेस थे and 7 बिट एड्रेस, है ना. 7 बिट एड्रेस दैट इज इक्वल टू because 128 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद we will get 7 बिट्स, है ना. so address 1 to address 7, नॉर्मली 0 to 6 लिखते हैं अपन, तो यहाँ पर 1 to 7 दे यूज्ड. ओके, 1 to 7 7 बिट्स. ये चिप का सिलेक्शन ऐसे होता है. चिप में देखिएगा अगर CS1 0 है, CS2 0 है, रीड पे कोई भी ऑपरेशन सिलेक्ट नहीं हुआ. सो यहाँ पर कोई भी हो मतलब यहाँ दोनों जीरो है तो नो ऑपरेशन, है ना. it will be state in a high impedance state मतलब there is no use. high impedance means use नहीं है, useful state नहीं है, है ना. already it is in state of high impedance मतलब there is no data transfer will be performed under this condition. if CS1 is equal to 0, CS2 is equal to 0, no operation will be performed. okay, so देखिएगा CS1 is equal to 0 and CS2 is equal to 1. Always CS2 is equal to 1 means complement है. complement होने के बाद ये 0 हो जाएगा तो इसका ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 0 कंडीशन ही है. सो इसीलिए यहाँ पर भी नो ऑपरेशन एंड हाई इम्पिडेंस स्टेट होगा. एक बार देखिए आप ध्यान से, इसका स्लाइड को समझ में आ जाएगा. सो यहाँ 0 0 में भी नो ऑपरेशन, 0 1 में भी नो ऑपरेशन बिकॉज ये 1 कॉम्प्लीमेंट होने के बाद इट विल बिकम 0, इसीलिए देयर विल बी नो ऑपरेशन. ओके,
सपोज CS1 इज इक्वल टू 1, ओके, हाँ इट इज ओके, एंड इट इज 0, है ना, इट इज 0। सो 0 होने के बाद ये कॉम्प्लीमेंट है ना, 1 हो जाएगा। सो ओके, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट रीड की सिग्नल भी एनेबल नहीं है, राइट की सिग्नल भी, मतलब डेटा ट्रांसफर की कंडीशन ही नहीं आया, कोई मतलब डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं रहे, है ना। सो देन आल्सो नो ऑपरेशन, इट विल बी इन हाई इम्पिडेंस, है ना, इसी स्टेट में, है ना, नो यूज ऑफ दिस स्टेट। ओके, एक और, it is a 1 and it is 0, okay, and read is 0, write is 1, okay, write signal का enable हो गया। इसका मतलब क्या है, write operation। write operation पे क्या है, आप मेमोरी में डेटा लिख सकते हैं, you can send the data, है ना। so input data to RAM, random access memory को डेटा आप भेज दीजिएगा। so that is the operation, okay। so यहाँ पर भी देखिए 1 CS1 1, okay, CS2 इज इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी 1 हो जाएगा, एंड राइट की ऑपरेशन नहीं है, रीड का है, तो क्या होगा, इट विल बी इन रीड ऑपरेशन, आउटपुट डेटा फ्रॉम रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी से डेटा को प्रोसेसर में लेकर आ जाएगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड आउटपुट, मतलब ये रीड ऑपरेशन, वी आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम रैम, है ना, मेमोरी से डेटा को फेच कर रहे, यहाँ पर डेटा को दे रहे, यहाँ पर ले रहे, है ना। एंड इफ इट इज 1 and 1, है ना, so 1 1 है, ये 1 always CS2, it is complement, it will become 0, so क्या होगा, again there is no signal, whatever it may be, है ना, no operation it will be performed, it will be in high impedance state, है ना, यहाँ पर भी high impedance state में होंगे अपन। so देखिएगा चिप सिलेक्शन, मतलब रैम की यहाँ पर चिप में ब्लॉक डायग्राम है ये। सो कितने होगा, एक चिप सेलेक्ट 1, चिप सेलेक्ट 2, इसीलिए क्यों लेते हैं ये दोनों, whether we need to choose the read operation या write operation, है ना, चूज करने के लिए we will choose the chip select 1, chip select 2 and read write signals and 7-bit address and 8-bit data bidirectional data bus, ये हो गया तो then we can design the RAM chip, okay। हाँ, next, so see here ROM chip को कैसे डिजाइन करेंगे, ROM can only read, the data bus can only be an output mode, है ना, तो यहाँ पर तो बाई डायरेक्शनल होने का चांस नहीं है, बिकॉज ओनली वी कैन रीड द डेटा, है ना, वी कैन नॉट राइट इनटू ROM, है ना, दैट इज द कंडीशन। सो यहाँ पर इसीलिए फॉर द सेम साइज ऑफ चिप, है ना, इतनी साइज चिप में अपन को ज्यादा सिग्नल्स को देने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पर, तो सो इट इज पॉसिबल टू हैव मोर बिट्स ऑफ ROM देन ROM, है ना, रैम से ROM में मोर बिट्स अकोमोडेट कर सकते, सो बिकॉज द इंटरनल बाइनरी सेल्स इन ROM ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन इन रैम, है ना, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट मतलब राइट करने के लिए अपन को देने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए 128 बिट्स की जगह पर अपन थोड़ा सा 512 बाइट का मतलब ROM को लेकर देखते हैं। सो फॉर दिस रीजन वी आर स्पेसिफाइंग ए 512 बाइट ROM rather than a 128 बाइट का RAM के, है ना। सो 512 बाइट्स मींस इसका एड्रेस क्या कितने होगा, देखिए, सो कन्वर्ट करिएगा 512 को 2 to the power of फॉर्म में, सो आप जानते हैं 9 बिट्स, इट विल स्पेसिफाई ये 9 बिट्स, है ना, 2 to the power of 9 is equal to 512, सो यहाँ पर 512 बिट का मतलब बाइट का मतलब आपको ROM चिप को आपको स्पेसिफाई करने के लिए 9 बिट्स की एड्रेस स्पेस जरूरत है। सो देखिए यहाँ पर रीड एंड राइट ऑपरेशन तो है ही नहीं, बिकॉज वी कैन ओनली रीड ऑपरेशन ओनली इट विल परफॉर्म, है ना, बट यहाँ चिप सिलेक्शन 1, चिप सिलेक्शन 2 इसीलिए दिया गया था, सपोज इफ यू वांट टू कंबाइन विथ RAM एंड ROM वी नीड टू सेलेक्ट, है ना, सो RAM को सेलेक्ट करना है या ROM को सेलेक्ट करना है, तब आपकी जरूरत पड़ेगा चिप सेलेक्ट 1 एंड चिप सेलेक्ट 2, है ना, क्योंकि बिकॉज 128 into 8 RAM की कोई काम नहीं है ना, सपोज वी नीड 256 की RAM चाहिए, है ना, पहले कंप्यूटर्स में 250, तो 2 RAM चिप्स को कंबाइंड करके एंड एक ROM चिप को कंबाइंड करके मेन मेमोरी को डिजाइन किया जाएगा। सो इसीलिए अपन को मतलब यहाँ पर दोनों की मतलब मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सो इसीलिए यहाँ पर
CS1 CS2 यहाँ बिट्स आ गया, क्योंकि रैम को सिलेक्ट करना है या रोम को सिलेक्ट करना है, इसी के थ्रू अपन सिलेक्ट करेंगे. एंड ऑलरेडी टोल्ड 9-bit एड्रेस बिकॉज 512 इज इक्वल टू 2 to the power of 9, है ना. 8-bit अनडायरेक्शनल, इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल, है ना. देखिए केयरफुली एक बार आप ऑब्जर्व करिएगा, वहां पर बाई डायरेक्शनल था रैम बस बिकॉज वी कैन राइट एंड रीड, बट ये अनडायरेक्शनल बस है, दैट इज 8-bit का, क्योंकि ओनली वी कैन रीड दिस. ओके, दिस इज द रोम चिप. ओके, सो इफ यू वांट टू डिजाइन ए रोम चिप, वैसा डिजाइन कर सकते हैं. ये 3 सिग्नल की जरूरत है, एक एड्रेस, चिप सेलेक्ट 1, चिप सेलेक्ट 2. रीड एंड राइट का कोई मतलब आपको जगह देने की जरूरत नहीं है. सो ये 512 बिट्स टू 128 बिट्स का मतलब बाइट्स का रैम एंड रैम हो गया. तो एक कंप्यूटर लैपटॉप इफ यू वांट टू डिजाइन ओनली 128 एंड 512 बिट्स से आपका सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते, है ना. यू नीड टू मैप, है ना. सपोज आई नीड 512 बिट्स रैम एंड 512 बाइट्स का रोम चाहिए, मतलब दोनों इक्वल कैपेसिटी चाहिए. सो आप कैसे मैप करेंगे उसको, एक बार देखिए. देखिए कैसे मैप करेंगे. देखिए यहाँ पर 4 रैम मतलब रैम चिप्स को लिया. दिस इज रैम 1, रैम 2, रैम 3 and RAM 4. 1, 2, 3, 4. 128 plus 128, 256. Again 256. This is 512, है ना. यहाँ पर एक ही लिया मैंने, that is 500. यहाँ पर mistakenly 128 फिगर पे आ गया. This is 512 बिट्स का RAM है. ओके, नीचे वाला 512 बिट्स का RAM है. ओके, ये चेंज कर दीजिएगा बाद में. ओके, ये चारों 512 हो जाएगा. ये आपके लिए 512 का रॉम है ना. सो इफ यू वांट टू मैप हाउ मेनी बिट्स वी नीड, है ना. मतलब कोई भी मैपिंग, सबको मैपिंग करके एक मेमोरी को डिजाइन करना है. सो कैसे डिजाइन कर सकते. सो रैम एक यहाँ पर ये रैम चिप लिया, इसमें क्या क्या होगा. CS1 CS2 रीड राइट एंड एड्रेस बिट, है ना. CS1 CS2 रीड राइट एंड एड्रेस. सो यहाँ पर CS1 CS2 एंड एड्रेस है, ये तो लिख चुके. सो यहाँ पर एक एड्रेस बस मतलब यहाँ पर ले लीजिएगा. कितना है, एक रीड वाला सिग्नल ले लीजिएगा. कहाँ कनेक्ट हो गया, रीड. यहाँ पर भी रीड, यहाँ पर भी रीड, यहाँ पर भी रीड, है ना. सो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये रीड वाला सिग्नल CS1 में कनेक्ट हो गया, बिकॉज रोम में तो ऑलवेज रीडिंग ही होगा, इसीलिए यहाँ पर रीड सिग्नल की जरूरत नहीं है, CS1 में कनेक्ट किया. हाँ, एक बार राइट सिग्नल देखिएगा. राइट, इट इज राइट, इट इज राइट, एंड हियर आल्सो इट इज राइट, एंड हियर आल्सो इट इज राइट, है ना. ये रोम में कनेक्ट नहीं किया, देख रहे हैं आप लोग ओनली. ओके, एंड 1 to 7 बिट्स, है ना, आपको एड्रेस. सो 1 to 7 बिट्स कहाँ कनेक्ट किया अपन, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, है ना. चारों रैम चिप्स को मतलब अपन कनेक्ट किया. एंड आपका 1 to 7 बिट्स और कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, नीचे भी 1 to 7 बिट्स का कनेक्ट होगा, क्योंकि 9 बिट्स की जरूरत है ना रोम में. सो 1 to 7 बिट्स यहाँ पर कनेक्ट करेंगे. फिर 8 and 9 बिट्स का भी आपको डेटा लेकर मतलब यहाँ कनेक्ट करेंगे. एक 7 बिट्स ऊपर से कनेक्ट कर रहे एंड 8 and 9 बिट्स का यहाँ से लेकर आके कनेक्ट कर रहे यहाँ पर, है ना. सो 9 बिट्स कनेक्ट हो गया. एंड यहाँ पर एक डिकोडर यूज किया मैंने, 2x4 डिकोडर. वाई यूज मतलब 2x4 डिकोडर क्यों यूज किया मैंने, इसीलिए यूज किया. यहाँ 4 रैम चिप्स है, इसको कोई भी हमेशा तो 4 ही रैम चिप्स तो सिलेक्ट नहीं होगा ना, कभी ना कभी तो एक काम करेगा, मतलब नेक्स्ट कभी ये काम करेगा. चारों चिप्स तो एक बार काम नहीं करेगा ना. सो इसीलिए उसको सिलेक्ट करने के लिए 2x4. 2x4 डिकोडर मीन्स क्या है, 2 inputs will be provided and 4 outputs will be मतलब will come, है ना. सो यहाँ पर 2x4 8 and 9 बिट्स को मैंने यहाँ पर तो एड्रेस ले लिया, यहाँ पर एक डिकोडर को यूज किया. डिकोडर यूज करने के बाद फर्स्ट डिकोडर सिलेक्ट होने के बाद फर्स्ट रैम सिलेक्ट होगा. अगर सेकंड डिकोडर सिलेक्ट होने के बाद सेकंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना. एंड थर्ड वाला है तो ये होगा, एंड फोर्थ है तो
ये वाला चिप सेलेक्ट 1 में कौन सा रैम सेलेक्ट होना है यूजिंग द डिकोडर। चिप सेलेक्ट 1 में अपन आउटपुट इसको कनेक्ट किया। ओके हाँ, अब चिप सेलेक्ट 2 किसको करेंगे अपन, चिप सेलेक्ट 2 10th बिट को। ओके 10th बिट को कहाँ कनेक्ट किया, देखिए 10th बिट यहाँ से लेकर आके देखिए यहाँ पर CS2 पे, CS2 पे, CS2 पे, CS2 पे, बट यहाँ पर भी कनेक्ट किया, इसीलिए कनेक्ट किया अपन इसको नेगेशन करके, कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पर कनेक्ट किया। अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये सिलेक्ट होगा, अगर नहीं कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये वाला सिलेक्ट होगा। ओके सो ये 4 रैम्स एंड 1 रोम को कनेक्ट करने के लिए अपन को 1 to 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। 11 to 16 बिट्स अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर इसका यहाँ पर साइज बढ़ गया, दैट मीन्स अपन 8 रैम्स को ले लिया, 2 रैम्स को ले लिया, तो फिर यहाँ का एड्रेस का ये बिट्स भी बढ़ जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल दूंगी मैं, इसको मतलब सॉल्व करके देखना। तो मेमोरी मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए so the configuration gives a memory capacity of 512 bytes of RAM and 512 bytes of ROM, है ना। ये फिगर पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 512 bytes है बेटा। ओके the particular RAM chip selected is determined from the lines 8 and 9। बताया ना मैंने, डिकोडर यूज करके 2x4 डिकोडर यूज करके CS1 को कनेक्ट किया, है ना। but the selection between RAM and ROM is achieved through बस लाइन 10 यूज करके CS1 पे होना है, CS2 को होना है, मतलब CS2 में कौन सा रैम होना है या राम होना है वो किससे होता है, 10th लाइन से अपन सिलेक्ट करेंगे। देखिएगा दिस इज द कॉम्बिनेशन, मतलब रैम, सपोज रैम 1 है, सो इसका हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा 00020007 F, यहाँ तक होगा। रैम 2 है तो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से मतलब रॉम है तो ये, है ना। इसको मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग एक बार पढ़िएगा इसको, ये टेबल को कैसे डिजाइन किया, देन आई विल एक्सप्लेन यू एंड नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। ओके सो थैंक यू। So in this lecture we learned about main memory, main memory कितने टाइप्स का है एंड मेमोरी हायरार्की क्या होगा, IO प्रोसेसर की क्या इंपॉर्टेंस है एंड मेन मेमोरी रैम कैसे, चिप का डिजाइन क्या होगा, रैम की बाई डायरेक्शनल बस क्यों है एंड रोम की अनडायरेक्शनल बस क्यों है, कितने डिजाइन एड्रेस में कितने बिट्स होगा एंड सपोज इफ यू वांट टू डिजाइन, है ना, मोर रैम्स को कनेक्ट करके मेन मेमोरी डिजाइन करना है तो मैपिंग कैसे हो सकते हैं, ये मैं अभी बता दिया आपको। एक और एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स के थ्रू नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट यू। ओके थैंक यू।